السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، صدق اللہ العظیم۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ آئیے سب سے پہلے آمنہ کے لال، مدینے کے ہلال، کشتی امت کے بنہار، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بہلانہ انداز میں پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرات محترم، میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ جل مجدہ الکریم قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ اس کا ٹرانسلیشن، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارى، اگر تم نشے کی حالت میں ہو۔ حضرات محترم، یہ پیغام آج آپ تک لانے کا مقصد اور منشا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں برائیاں جنم لے رہی ہیں، کم عمر کے بچے نشے کے عادی ہیں۔ آج بچوں کو دیکھا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے سگریٹ کا سیون کر رہے ہیں، طرح طرح کے نشے کر رہے ہیں۔ معاشرے کو سدھرنا چاہیے، معاشرے میں ترقی ہونا چاہیے۔ ترقی تبھی ہوگی جب ہم نشے سے باہر نکل کے آئیں گے۔ شراب نوشی بالکل اس طریقے سے کی جا رہی ہے، اس طریقے سے لوگ نشہ کر رہے ہیں کہ ان کو اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حضرات محترم، شراب شریعت میں بالکل حرام ہے، شراب شریعت میں بالکل حرام ہے۔ شراب پی کر آپ مسجد کے قریب نہیں جا سکتے، کیونکہ قرآن مقدس نے منع فرما دیا ہے کہ اگر تم شراب کی حالت میں ہو، نشے کی حالت میں ہو، تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ نماز مسجدوں میں پڑھی جاتی ہے، اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ اب بتلائیے کہ اگر ہم نشے کی حالت میں ہوں گے تو ہم کس طریقے سے مسجدوں کے قریب جائیں گے؟ اور ذرا خیال کر لیا ہوتا، میں ان نوجوانوں سے، ان شادی شداؤں سے میں سوال کرتا ہوں کہ جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ دن بھر محنت مزدوری کرتے ہیں، اپنا پسینہ بہاتے ہیں، لیکن شراب کے عادی ہیں، شراب پیتے ہیں۔ اللہ اکبر! جو کماتے ہیں وہ برے کاموں میں لگا دیتے ہیں، شراب پی جاتے ہیں سارے پیسوں کی۔ پورا دن ہم محنت و مشقت کرتے ہیں، لیکن جو چند ٹکے ہم کو ملتے ہیں، ہم وہ پیسے لے کر شراب کی بھٹی پر پہنچتے ہیں۔ وہ آپ کے مکان میں آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا باپ کچھ پیسے لے کر آئے گا تاکہ ہم راشن خریدیں گے اور اپنے پیٹ کو بھریں گے، لیکن وہ باپ شراب کا عادی ہے، وہ باپ سگریٹ کا عادی ہے، وہ باپ شراب
पिए बगैर रह नहीं सकता है, वो शराब की भट्टी पे गया, 200-400 रुपए की शराब को ख़रीदा और ख़ुद पी गया। जब घर पे पहुंचा तो वो बच्चे ये उम्मीद लेके बैठे होते हैं कि हमारा बाप कुछ पैसे लेकर आएगा, हमने दोपहर का खाना नहीं खाया है, आज शाम का खाना हमको मिल जाएगा, आज हमारे घरों में 2 दिन से फाके थे, आज हमारा बाप पैसा कमाने के लिए गया है तो हमारा बाप पैसे लेकर आएगा तो हम कुछ सामान खरीद के लाएंगे और हम सैर होंगे। लेकिन बाप नशे की हालत में पहुंचा। जब बीबी ने सवाल किया तो सारे पैसों की शराब पीकर आ गया। वो बच्चे मायूस हो गए। अब मुझे आप बतलाइए कि एक शराब ने आपके परिवार को फाके से रखा या नहीं रखा? तो शराब को बिल्कुल कतई छोड़ दें और इस शराब के नशे से बाज आ जाएं। इंशाअल्लाह ताला आपकी सेहत में भी इजाफा होगा और आपके पैसे में भी इजाफा होगा। लेकिन मुआशरा हमारा सुधरना चाहिए। हमें शराब नहीं बल्कि रसूलुल्लाह के फरमान पर अमल करना चाहिए। और शराब जो बंदा पीता है कल क़यामत के दिन उसको पीप और खून पिलाया जाएगा और वो ऐसा हो इतना गर्म होगा कि आंतों को भी ख़राब कर देगा। वो आंतें भी आपकी बस्ट हो जाएंगी, आंतें भी आपकी जल जाएंगी, इतना गर्म होगा और वो होगा जहन्नम से निकाला जाएगा। अल्लाह अकबर। बताइए आप कि शराब पीने वाले की ना दुनिया में इज्जत है, ना कब्र में है और ना हश्र में है। जिस प्लेट में अगर शराबी खा ले, हुक्म तो ये है कि प्लेट को धोया जाए और अच्छे तरीके से उसको धोया जाए फिर उसमें खाया जाए। मैं तो यहाँ तक कि कहता हूँ कि शराबी जिस गिलास में पानी पिए और शराबी जिस प्लेट में खाना खाए उसको साइड में हटा दी जाए, क्योंकि वो जब शराब पीता है तो शराब का जो कतरे होते हैं वो उसकी रगों में जाते हैं। अल्लाह अकबर। अब मुझे आप बतलाइए कि शराब पीने वाले की इज्जत कोई करता है? नहीं करता है। अगर कोई शराब पीने वाला 40 साल की उम्र का है, वो कोई बात अगर पंचायत में रख दे तब भी उसकी बात को नहीं माना जाता। क्या कह कर ठुकरा दिया जाता है? ये तो शराबी है, इसको अपनी नहीं पड़ी है तो दूसरे का फैसला ये क्या करेगा? तो शराबी की ना दुनिया में इज्जत है और ना आखिरत में उसकी इज्जत होगी। तो खुदा के वास्ते आप शराब से बाज आइए, क्योंकि ये अल्लाह का फरमान है, शराब की हालत में हो तो नमाज के करीब ना जाओ। तो शराब को आप छोड़ दीजिए, मेरा ये पैगाम है। चलते चलते मैं एक बात आपको और बतलाता चलूँ। सैयद वारिस अली पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम आपने सुना होगा। एक शख्स था जो शराबी था। वो सैयदना वारिस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में मुरीद होने के लिए आया। उसने कहा, सरकार आप मुझको मुरीद कर लीजिए। तो हुजूर ने फरमाया कि ठीक है, मैं आपको मुरीद कर लूँगा। सरकार वारिस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ठीक है, मैं आपको मुरीद कर लूँगा। तो उस शख्स ने कहा, हज़रत मैं मुरीद तो हो जाऊँगा लेकिन मेरी एक शर्त है। तो हज़रत ने फरमाया, क्या शर्त है? कहा, हज़रत मैं मुरीद तो हो जाऊँगा लेकिन मुझसे शराब नहीं छूटेगी। तो सरकार वारिस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ठीक है, लेकिन मेरा भी एक कहा मानना पड़ेगा। उसने कहा, जी हुजूर आपका कहा मानूंगा। आप फरमाते, ठीक है तू शराब पी लेकिन मेरे सामने शराब नहीं पिएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उसने कहा, ठीक है हजरत, मैं आपके सामने शराब को नहीं पीऊंगा लेकिन मैं और जगह जाकर तो पी सकता हूँ। सरकार वारिस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ठीक है। आपने मुरीद फरमाया। मुरीद फरमाने के बाद जब वो शख्स देवा से निकला और सवारी पे जब सवार हुआ तो उसने कहा, अब तो मैं देवा की सरहद से काफ़ी दूर आ गया हूँ, यहाँ पर तो मेरे मुर्शिदे करीम नहीं आएंगे। जैसे ही उसने शराब की बोतल के ढक्कन को खोला तो जैसे ही मुंह में लगाना चाहा तो सरकार वारिस पाक फरमाते हैं कि मैंने तुझसे कहा था ना कि मेरे सामने तू शराब नहीं पिएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उसके जहन में ये ख्याल पैदा हुआ कि हो सकता है मैंने ध्यान ना दिया हो और हजरत आकर बैठ गए हों, तो इसीलिए तो मुनासिब हो सकता है ना कि मैंने उनको ना देखा हो और वो इस सवारी पे सवार हो गए हो। लेकिन जब मैं अपने मकान में जाऊंगा ना तो वहां तो हजरत नहीं मिलेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो सवारी से उतरा, अपने मकान में पहुंचा। मकान में पहुंचने के बाद अल्लाह अकबर, उसने
बोतल के ढक्कन को खोला शराब की, जैसे ही मुंह में लगाया तो सैयद बारिश से पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने तुझसे कहा था तू शराब पीना लेकिन मेरे सामने ना पीना। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। उसने कहा कि हो सकता है मेरे पीछे पीछे आ गए हो, मैंने ध्यान ना दिया हो। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। फिर उसने थोड़ी देर के बाद जो है अपने दरवाजे अपने मकान के दरवाजे को बंद किया, जो रोशनदान लगे हुए थे उन पे कपड़े को डाला। फिर उसने शराब की बोतल पे हाथ लगाया, खोलना चाहा और जैसे ही मुंह में लगाया सैयद बारिश से पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, तो आप फरमाते हैं कि मैंने तुझसे कहा था ना कि मेरे सामने शराब ना पीना, तो वो भी कहने पर मजबूर हो गया। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। एक बारिश पाक को आपने देखा, ये मुस्तफ़ा के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम है। वो शराबी की शराब किस अंदाज में अल्लाह के वली ने छुड़वा दी। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये बुजुर्गों की शान है। जब बारिश से पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की ये शान है, तो बताओ तेरे मेरे नबी की शान क्या होगी। खुदा के लिए बुजुर्गान दीन से मोहब्बत फरमाइए और सरकार से मोहब्बत फरमाइए। हज़रात मोहतरम, आज आए दिन आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे कि हुजूर की शान में गुस्ताखी हो रही है, सरकार की शान में गुस्ताखी की जा रही है। अल्लाह पाक ऐसे गुस्ताखों को इबरत का निशान बनाए। अल्लाह पाक देखिए, किसी की कोई भी अगर मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करे तो मेरे नबी की शान में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को बेमिसल बेमिसाल बनाकर भेजा। अल्लाह पाक ने मुस्तफ़ा को इतना आला बनाकर भेजा कि आला हज़रत फरमाते हैं, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। हुजूर से मोहब्बत कीजिए, सरकार से प्यार कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, जब आप सरकार से मोहब्बत करेंगे, सरकार से प्यार करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला ये मोहब्बत दुनिया में भी काम आएगी और आखिरत में भी काम आएगी। ये मोहब्बत ही का तो नतीजा है ना। सिद्दीक़ अकबर को सदाकत मिल गई, फ़ारूक़ आज़म को अदालत मिल गई, उस्मान गनी को सखावत मिल गई, मौला अली को शुजाअत मिल गई। ये मेरे नबी की शान है। जिस शख्स ने मेरे सरकार को ईमान की हालत में देखा, वो सहाबी की मंजिल पर पहुंच गया। और वो सहाबी जिसके बारे में हुजूर फरमाते हैं, किसी मेरा उम्मती किसी भी मेरे एक सहाबी की इक्तदा करेगा तो इंशाअल्लाह ताला हिदायत पा जाएगा। सहाबाए कराम ने अपनी जानों को मुस्तफ़ा के कदमों पे कुर्बान किया है, हुजूर के हुक्म पर कुर्बान कर दिया है, हुजूर की शान पे कुर्बान कर दिया है। और कुर्बान करने के बाद कहते थे फिदा का सरकार की बारगाह में कुर्बान होने के बाद कहते थे, ये ऐ परवरदिगार आलम, मैंने तुझ पे और तेरे नबी की ज़ात पर सब कुछ कुर्बान कर दिया है। फिर उनका इनाम क्या है? उन्हीं के लिए जन्नत है, वही जन्नत के असल हकदार हैं, उन्हीं के लिए जन्नत है, उन्हीं के लिए आब कौसर है। लेकिन हम भी सरकार के उम्मती हैं, हम भी सरकार से मोहब्बत करने वाले हैं। अल्लाह पाक सरकार का इश्क अता फरमाए, सरकार की मोहब्बत अता फरमाए, सरकार के इश्क में मौत अता फरमाए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफाअत कुबरा हम सब को अल्लाह ताला मैदान हश्र में नसीब फरमाए और सरकार से सच्ची पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। इस्तगफार पढ़ लें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह ताला चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हर आने वाली वीडियो को इंशाअल्लाह हमारी ज़्यादा से ज़्यादा आप देखा करें, अच्छी बातें सुना करें। अल्लाह पाक हमें अच्छी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।